Good morning, students. This is our next topic, torque on a dipole in a uniform electric field. As you know, dipole is an arrangement of two charges, positive and negative, separated by a small distance. Now we have to take dipole minus q charge and let this is plus q. Is placed in a uniform electric field. Now, see, this is the direction of electric field. Okay? This is the distance between minus q and plus q, that is 2L. Okay? Now see, this is midpoint of this length. Okay, then it is L and L. See, first of all, this is an electric field, then force will act. This is charge plus Q, force is Q E. As we know that force is equal to QE. Okay, QE. Next, here a force occurred that is also equal to QE. Now see, both the forces are opposite in direction and both are equal, that is QE. QE. Both the forces are acting opposite to each other. That means the net force, translational force, is equal to 0. 0. That means ये ना इधर ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा ना इधर शो करेगा, नेट आपका जो फोर्स होगा 0 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे नेट फोर्स आपका 0 हो गया. अब यहाँ पे देखेंगे ये फोर्स लग रहा है किसी एंगल पे, लेट इट इज बी थीटा. ठीक है, अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये रोटेट करेगा. फोर्स ऐसे लग रहा है, ये रोटेशन शो करेगा. नाउ अगर रोटेशन शो करेगा तो दैट मीन टॉर्क लगेगा. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, नाउ as we know that force is equal to QE, now put torque is equal to QE into perpendicular distance. Now we have to find out perpendicular distance. See, this is not your perpendicular distance, this is your perpendicular distance. Okay, ये आपकी perpendicular distance है. अब यहाँ पे देखिए, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ठीक है, इस पॉइंट को आप O ले लीजिए. ठीक है, यहाँ पे ये हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये O है, ये प्लस Q चार्ज है. नाउ सी, हमें क्या चाहिए, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस चाहिए. ये थीटा हो गया आपका. अब क्या होगा, ये L कंपोनेंट है. ठीक है, अब L के दो L है, ये L के दो कंपोनेंट होंगे, ये बेस के अलोंग L cos थीटा, ओके, परपेंडिकुलर L sin थीटा. ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगी. तो अगर ये L sin थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, L sin थीटा. ओके, नाउ सी, टाउ इज इक्वल टू QE into L sin theta. Now see, both the charges will produce a torque. ठीक है, ये क्या करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब ये देखिए, ये भी क्या करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो टाउ अगर नेट निकालेंगे तो टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. देन as we see, both are in clockwise direction. This will rotate like this and this will also rotate like this. Both are clockwise direction. That means both the torque are simply added. QE L sin theta plus QE
this is 2 times of QE L sin theta. As we know that 2L into Q is equal to P. Now see, 2L into Q, that is dipole movement. P into E बचा sin theta. PE sin theta. If we have to write it in vector form, then tau net is equal to P cross E. Okay, this is our derivation for torque. Good morning students. Today we are going to solve some numericals on dipole. Here is your question. 2-point charges QA is equal to 3 into 10 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint? O 0 लग रहा है, ठीक है, O है ये आपका, of the line AB joining the two charge. इसके देखिए इसके दो पार्ट हैं. ये आपका क्या है, कह रहा है there are two charges QA and QB. This is 3 microcoulomb. This is minus 3 microcoulomb. Separated by a small distance 20 centimeter. Okay, we have to find out electric field at midpoint O. ठीक है, electric field we have to find out electric field, ठीक है, at O. Now it is 20 centimeter. अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिएगा यहाँ पे कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ले रहे हैं, QA क्या है आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, दैट मींस इस डायरेक्शन में, ठीक है. अब QB क्या है, माइनस है, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया. अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B चार्ज. तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, EA प्लस EB, ठीक है. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A. 1/4πε0 Q अपॉन Q आपका चार्ज कितना है, A पे चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम. 3 माइक्रोकूलम मीन्स 3 into 10 to the power minus 6 coulomb upon R square. This is in centimeter. We have to calculate it in meter. 10 centimeter 10 into 10 to the power minus 2 मीटर हो जाएगा. इसका होल स्क्वायर करना है हमें, ठीक है. देखिए R आपको 10 सेंटीमीटर दिया है. 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10 to the power minus 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा, ठीक है. ये आपका R आया है और R का स्क्वायर रखना है यहाँ पे, ठीक है. देखिए अब EOA 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10 to the power 9 into 3 into 10 to the power minus 6. अब 10 का स्क्वायर 100, ओके. 10 की पावर minus 2 का स्क्वायर 10 to the power minus 4, ओके. Then C 9 3 times 27, 10 की पावर 9, 9 minus 6 3, 10 की पावर 3, ओके. ये क्या हो जाएगा 100 into 10 to the power minus 4 क्या हो जाएगा 10 to the power minus 2. अगर ये minus 2 ऊपर जाएगा तो 27 into 10 to the power 5 हो जाएगा, ठीक है. ये हो जाएगा न्यूटन कूलम, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन कूलम.
ये तो हो गया E electric field at O due to A. Now we are going to find out electric field at O due to B. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेम आएगा आंसर। क्यों सेम आएगा? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और क्योंकि डायपोल है तो चार्ज भी सेम है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए 27 इंटू 10⁵ न्यूटन कुलाम आएगा। ठीक है, ये आपका कुलाम चार्ज। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये डायपोल है। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों की मिड पॉइंट से ली गई है तो डिस्टेंस भी सेम है। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 रखा है, सेम डिस्टेंस है, ये भी तो 10 सेंटीमीटर है तो दोनों ये आ गया। हमें अगर ई नेट निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, 54 हो जाएगा। 54 इंटू 10⁵ न्यूटन कुलाम, ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है इफ अ निगेटिव टेस्ट चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁹ कुलाम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है ये जो मिड पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं? चार्ज रख दे रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻⁹ कुलाम। पहले पॉइंट था, अब सेकेंड पार्ट में क्या कहा? अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ज रख देते हैं तो उस पे फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया आपका सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा न्यूटन पर कुलाम है बेटा, यूनिट न्यूटन पर कुलाम, यहाँ गड़बड़ हो गया था। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यूनिट गड़बड़ हो गई थी। हाँ, ठीक है, F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? क्यू ई। ठीक है, तो ई की यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की न्यूटन अपॉन कुलाम। हाँ, न्यूटन पर कुलाम, ये गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जरूर से करेक्ट कर लीजिएगा बेटा। हाँ, अब बोला गया नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स एट दिस पॉइंट इफ दिस चार्ज इज प्लेस्ड हियर एट पॉइंट ओ पे। अगर हमने ये चार्ज प्लेस कर दिया तो हमें क्या निकालना है? फोर्स। अभी हमने एक फॉर्मूला कर लिखा था, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि हमें पता है F हमें फोर्स निकालना और किस पे निकालना है? ये वाले चार्ज पे। तो चार्ज कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁹। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आई थी 54 इंटू 10⁵। तो फोर्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 54 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इजी सा था, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि पहले तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट मिड पॉइंट ओ, देन वी हैव put a charge at that position, at this position. Now we have to find out force. ठीक है, next we will further see more numericals. Student, this is very lengthy question, that's why I have written this in this form. Two charges, 1 microcoulomb and -1 microcoulomb, kept at the distance 2 centimeter. Okay, and the electric field is given 1 into 10⁵ Newton per coulomb. Theta is given. These are given data in the question. क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए हमने इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लिए थे। अब हमें क्या निकालना है? इस पे डायपोल मूवमेंट निकालना है। ठीक है, और टॉर्क निकालना है, और हमें ये बताना है कि when would be the torque will maximum. First of all, we know that
ठीक है, डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q, चार्ज क्या है आपका 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। 2L आपकी डिस्टेंस क्या होती है, ये नहीं कि 2 टाइप से मल्टीप्लाई कर दें, 2L ही आपकी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है, याद रखिएगा। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, यही डिस्टेंस आपकी 2L होती है। तो 2 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, कूलम मीटर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट। सेकेंड, टाउ, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E या PE साइन थीटा, साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू P हम लोग ने अभी निकाला है 2 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। E की वैल्यू ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 1 इंटू 10⁵, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। देन टाउ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2, टाउ इज इक्वल टू 10⁻3, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन द वुड बी द टॉर्क मैक्सिमम, एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी हमारा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, ठीक है, साइन थीटा आपका 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। साइन 90 कितना होता है, 1, दैट मीन्स टाउ विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। Students, this is our next question. A system has two charges. QA is equal to 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb located at points A 0, 0, minus 15 centimeter and B 0, 0, plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole movement of the system? ठीक है, यहाँ पे what we have given two charges QA and QB, ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A, ये ले लीजिए X, ये है Y, ये Z है। Z कोऑर्डिनेट दिया गया है -15, that means let it is Z axis, okay, X axis and Y axis. There is no use of X and Y axis because X and Y coordinate in A and B at 0, ठीक है। now देखिए X axis पे जो कोऑर्डिनेट है 0 है, Y 0 है और ये -15 है, QA जिस पे रखा गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया है, जैसे जैसे दिया है, मतलब ये कोऑर्डिनेट में QA रखा है। इस ये क्या है, -15 सेंटीमीटर, ओके, इसमें क्या रखा गया है, QA रखा गया है, ठीक। नाउ सी इन सेकेंड को ये जो है +15 पे रखा गया है QB, ठीक है, ये +15 है, ये -15 है, तो 0 से +15 ऊपर और माइनस नीचे, और ये हमारा Z कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये Z 0 होता और X दिया रहता, फिर भी आप ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी कि X एक्सिस दिया है, Y एक्सिस दिया है और Z एक्सिस दिया है, तो आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल आपको कोऑर्डिनेट कितना हुआ आपका, ये जो है 15 ऊपर 15 नीचे, टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया था, ये 15 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन QA एंड QB इज 30 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल चार्ज, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल चार्ज। टोटल चार्ज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स
Q total is equal to QA plus QB विथ साइन रखेंगे आप लोग, ठीक है। QT is equal to QA is 2.5 into 10 to the power minus 7 and QB minus 2.5 into 10 to the power minus 7, ठीक है। ये हो गया आपका 0 टोटल चार्ज। ऑलवेज रिमेंबर इन अ डायपोल सिस्टम द टोटल चार्ज इज ऑलवेज 0, ठीक है। अगर मान लीजिए +1 माइक्रोकूलम है, ये -1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ये डायपोल बना रहा है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए, तो टोटल चार्जेस का हमेशा क्या होगा, नेट चार्ज होगा 0। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन अ डायपोल टोटल चार्ज इज ऑलवेज 0। नाउ QT is 0। फर्स्ट क्वेश्चन में आप फाइंड आउट। नाउ फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q into 2L, ठीक है। नाउ सी वी हैव टू टेक Q 2.5 into 10 to the power minus 7 and the distance between them। Q2L हमारी क्या थी, डिस्टेंस थी ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मीन्स 30 into 10 to the power minus 2 मीटर। डोंट मल्टीप्लाई दिस विथ 2, ठीक है। ये हमारी लेंथ 2L हमेशा हम लोग लेते हैं, ये आपकी क्या थी 2L। डायपोल में आप कितनी लेंथ लेते हैं, तो ये आप 2L लेते हैं। तो आप ये नहीं कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस ही रखते हैं। 2L आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, 2L आपकी दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है। नाउ फाइंड आउट। सेवन 0.5 into 10 की पावर -9 into 10। Okay, now see 7.5 into 10 to the power -8 p। इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज कूलम मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। Students, this is our next question। An electric dipole when held at 30 degree, that means angle is given 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 to the power 4 Newton per coulomb। Electric field is given 10 to the power 4 Newton per coulomb, ठीक है। Experiences a torque is given 9 into 10 to the power -26 न्यूटन मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ द डायपोल, ठीक है। हमें P निकालना है, ठीक है। हमें पता है टाउ इज इक्वल टू क्या आता है, P क्रॉस E, ठीक है। और टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। हमें टॉर्क दिया हुआ है 9 into 10 to the power -26, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। P और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी दी गई है, 10 to the power 4 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 आपका होता है 1/2। पुट करिए उधर, 9 into 10 to the power -26 P into 10 to the power 4 into 1/2, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 टाइम्स 18 to 10 to the power -26। ये 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा, P -4 है ऊपर जाएगा तो +4 है ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो P की वैल्यू आपकी यहां से क्या आ जाएगी, 18। P इज इक्वल टू 18 into 10 to the power -26 into 10 to the power -4, that means 18 into 10 to the power -30। और इसकी यूनिट क्या होगी, Q into 2L, that means
कूलाम मीटर। ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा।